नमस्कार, जय हिंद। મેં જેટલું દેખાડ્યું એટલું જોયું બધું તમે? પહેલા મેં આર્મી ઓફિસરનો એક મ્યુઝિક બતાવ્યું અને પછી ઓફિસના 3 ટુકડા બતાવ્યા. આ બધામાંથી તમને શું લાગે છે? વોટ અબાઉટ સ્ટ્રેસ? વોટ આર યુ ડિરાઇવિંગ? એમાંથી તમને શું ખબર પડે છે? We are accumulating stress. Accumulation of stress. Okay, good. રાખીબેન આખો સર, જે લોકો જે ખરેખર જિંદગીને દાવ પર લગાડે છે એ લોકો તો મસ્તીથી મ્યુઝિક વગાડે છે ને અમે લોકો ઓફિસ ને ફાઇલ્સ માં ડીલ કરીએ છીએ, સ્ટ્રેસ ના કારણે બધું તોડફોડ કરીએ છીએ. ઓકે ઓકે, ગુડ 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 ગુડ. એનીથિંગ એલ્સ? ફિલ્મ તો બધાએ જોઈ ને? જે તમારી સામે થઈ રહ્યું છે તમે એનો ऑब्जेक्टिवली જોઈ રહ્યા છો. आप इसको ऑब्जेक्टिवली देख रहे हो, आप इसमें पार्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है? और आपको ये बताना है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा. यस श्रीपा સર, કોઈકના કોઈક રીઝનથી સ્ટ્રેસ થયું છે અને એ સ્ટ્રેસ એ કોઈ વસ્તુ પર ઉતારી રહ્યા છે તો ગુસ્સો કાઢી રહ્યા છે. ઓકે. સો what I see is that they are trying to vent out. Maybe they are not getting the right place to vent out. That's why they are venting out on products. Very good. બહુ સરસ. રાખીબેનનો મુદ્દો પણ સરસ છે, તમે પણ બહુ સરસ બોલ્યા. ધેટ્સ અ ડિફરન્ટ એંગલ બટ ગુડ. યસ કુંજલભાઈ. કુંજલબેન. પ્રણામ ગુરુજી. સર, જે આર્મી મેન છે જે સૌથી વધારે એકચ્યુઅલી સ્ટ્રેસમાં રહેવો જોઈએ પણ એ મ્યુઝિક દ્વારા પોતાના તણાવને ઓછું કરી રહ્યો છે. મ્યુઝિકના કારણે ખુશ મિજાજ રહી રહ્યો છે અને તણાવ એનું ઓછું થઈ રહ્યું છે અને આ બીજા લોકો પોતાના તણાવને કમ્પ્યુટર પર ઉતારી રહ્યા છે, પોતાના સ્ટ્રેસને ફેંકી ફેંકી, એટલે ક્રોધની ચરમ સીમા થઈ રહી છે. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर, पहले ये कंसीडर करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है. मैं आगे ले लेता हूं धर्मेंद्र भाई, आप सभी को लेता हूं, लेकिन कंसीडर करना है आपको कि दोनों की ड्यूटीज में क्या अंतर है. एक आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी, भले ये तो एक परफॉर्मेंस था और मुझे और भी तो मैं दिखा सकता था, लेकिन मैंने आर्मी ऑफिसर को जानबूझ के दिखाया आपको, तो आपने पकड़ लिया बिल्कुल, रेखी बहन ने जैसे पकड़ा कि वो तो अच्छी तरह से बजा रहा है. केवल म्यूजिक बजाने की बात नहीं है. आर्मी ऑफिसर 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, बहुत कम रिसोर्सेस में काम करते हैं. और कल जितनी बात हुई है, अगर एकाग्रता से काम ना करे तो एक भी ऑपरेशन नहीं कर सकते. अभी रिसेंटली हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया है. आप समझ में आ रहा है कि कैसी एकाग्रता से ऑपरेशन हुआ होगा. तो कल की बात के साथ ही सब चीज जुड़ेगी. मैं बेवजह कुछ भी नहीं दिखाऊंगा. तो एक आर्मी ऑफिसर को
कैसे ड्यूटी करनी है उसको कंसीडर कीजिए, और अपने जो ऑफिस के कुछ एक स्ट्रेसेस वाले एपिसोड दिखाए उसमें क्या अंतर है। तो बेसिकली मैंने दिखाने का पीछे पर्पज यही है कि आपका ये ध्यान चला जाए। यस, धर्मेंद्र आप कुछ कहना चाहते थे? यस। એક સિચ્યુએશન પ્રેશર કુકર જેવી છે કે ટાઈમ થાય એટલે પ્રેશર વધી જાય એટલે સીટી વાગે ને બીજું સુતડી બોમ્બ જેવી છે કે કોઈ જામગરી ચાપે ને બોમ્બ ફૂટે એટલે ક્યારેક આવું થાય ને ક્યારેક આવું થાય કે પેલામાં પ્રેશર વધી જાય એટલે આપોઆપ વિસલ વાગે જ, નહીં તો કુકર ફાટે. જ્યારે આમાં એવું છે કે એક સડક તો એક દાવાનળ છે જેની અંદર પોટેન્શિયલ છે કે ભાઈ ક્યારે ધડાકો થાય, પણ એ જામગરી કોઈ બીજું ચાપે ને એ બોમ્બ ફાટે. ઓકે, ધર્મેન્દ્રભાઈ છે ને ડાયનેમાઇટની ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે અને આજે સવારે એમના પત્ની ગયા છે શોપિંગમાં ને એમણે જમવાનું બનાવ્યું છે, એટલે એમણે ડાયનેમાઇટ અને કુકરના ઉદાહરણ આપી દીધા. ફાઇન, નેક્સ્ટ કોઈ બીજાને કહેવું? હા સર. હા બોલો જયેશ. સર આમાં મારા ખ્યાલથી બે સિચ્યુએશન દેખાય છે. એક છે ઓનરશિપ અને બીજું છે એકાઉન્ટેબિલિટી. આ જે આર્મી એવું હોય છે કે આ મારું કામ છે, મારે કરવાનું છે, ફેમિલી એ બધું પછી પહેલા મારો દેશ. તો એના માટે એને અંદરથી પેલો ટ્રેસ આવતું નથી કે ભાઈ આ તો મારું કામ છે. બાકીના જે બીજા જે વિડીયો જો એની અંદર છે કે ભાઈ આ મારું કામ નથી મને સોંપવામાં આવ્યું, તો ત્યાં ઓનરશિપ નથી દેખાતી. જ્યાં ઓનરશિપ નથી ત્યાં ટ્રેસ ઓટોમેટિકલી આવે છે. ओके, जयेश भाई नो एक वंडरफुल एंगल મળ્યો આપણને. एनीवन एल्स और कोई कुछ जोड़ना चाहता है? एनीवे, चलो मैं ये दृष्टि बिंदुओं का स्वागत करता हूं और एक विशेष दृष्टि बिंदु आपके साथ शेयर करता हूं. तो आर्मी को पहले से मालूम होता है कि कभी ना कभी युद्ध करना पड़ेगा. अब देखिए, युद्ध की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, राइट? एक दशक में भी एक युद्ध नहीं, या पूरी कैरियर चली जाए और कोई युद्ध नहीं. आप ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात? पर उनकी प्रिपेयर्डनेस युद्ध के लिए कैसी होती है? धवल बताइए. आर्मी ऑफिसर की, एयर ऑफिसर की, नेवी ऑफिसर की युद्ध के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे होती है? पूरी तरह से वो तैयार रहते हैं कभी भी युद्ध में जाने के लिए. हाँ, तैनात. ये पहले से ही इनको मालूम है कि स्ट्रेस तो होने वाला ही है, तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर हैंडल एनी डैम सिचुएशन. और अल्टीमेटली जानलेवा वो तो अल्टीमेट स्ट्रेस है. याद कीजिए, शुरू के एपिसोड में मैंने बताया था 3 ही स्थिति है स्ट्रेस की. याद है किसी को? 3 डायमेंशन मैंने बताए थे. बोलो कोई है? माइका लाल. कभी से ये शब्द नहीं बोला मैं, माइका लाल या माइकी लाली. मैंने कहा था स्ट्रेस के केवल 3 वजह है. अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि याद मुझे रखना है. मुझे मेरे स्ट्रेस को हैंडल करना है और उसको मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं वो याद रखना है. चलो राजवी बताती है. बताओ राजवी. 3 હતા. એક તો પરિવાર, સમાજ અને એજ્યુકેશન. तू मेरे लिए स्ट्रेस क्रिएटर है ये नया. ये 3 वजह है जहां से हमारे अंदर संस्कार की प्रक्रिया बनती है. परिवार, समाज और एजुकेशन. मैंने बेटा सवाल ये नहीं पूछा, मैंने सवाल ये पूछा है कि स्ट्रेस आने के रास्ते या वजह या कारण, कॉजेज. उत्पल. सर, शरीर का मर जाने का डर, डिमोरलाइजिंग सिचुएशन और डिमांडिंग सिचुएशन. परफेक्ट, तालियां, शाबाश, क्या बात है बेटा, वाह, मजा आ गया. 3 चीज है, डेंजर, डिमांड एंड डिमोरलाइजिंग. या तो डेंजरस सिचुएशन है, या तो डिमांडिंग सिचुएशन है, या फिर डिमोरलाइजिंग सिचुएशन है. ये 3 सिचुएशन से ही स्ट्रेस होते हैं. अब मुझे बताइए, ये 3 में आर्मी कहां बैठती है? डेंजरस, हाँ या ना? हाँ. डिमांडिंग, हाँ या ना?
डेली 24 आवर्स, डेंजरस और डिमांडिंग। दोस्तों मैं बंकर में रह चुका हूं। डेंजरस, डिमांडिंग, तीसरा कौन सा है? डीमोरलाइजिंग। देखिए थोड़ी देर के लिए आपको ये डीमोरलाइजिंग को समझना होगा। जब अपने ही कोई साथी का टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर हो जाए और उसमें उसका कॉफिन आए, पूरी बटालियन की क्या स्थिति होती होगी? जिनके साथ 24 घंटा बिताते हैं, कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, यही परिवार होता है। उसी में से एक व्यक्ति का डेड बॉडी आ जाए, कितना डीमोरलाइजिंग है, कितना अनिश्चितता के साथ काम करना पड़ रहा है। फिर भी ये लोग वंडरफुल काम करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं। आज मैं वो खत नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो स्थिति बड़ी भावुक बन जाएगी। मैं आपको ले चलता हूं लेह लद्दाख। लेह में मैं आपको ले चलता हूं आर्मी म्यूजियम। आर्मी म्यूजियम में एक खत है और वो खत पोस्ट कार्ड आगे पीछे दोनों की कॉपी करके वहां रखी गई है। कर्नल विजयन थापर खत लिखते हैं, परम पूज्य पापा मम्मी सभी का नाम। जब ये आप खत पढ़ते होंगे तब मैं आपको आसमान से देखता होऊंगा, अप्सराओं की कंपनी में। आपको पहली लाइन से मालूम पड़ रहा है ये कोई परमवीर ने खत लिखा है, शहीदी के बाद में खत मिला है यूनिफॉर्म से। खत में लिखा है मैं आपको आसमान से देखता हूंगा। रुखसाना राखी भेजती थी, हर साल इसको मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। मेरे जाने के बाद मेरी ये तस्वीर तो आप मंदिर में रखोगे, लेकिन मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि कभी आए यहां और देखे हमने कहां आपके फ्यूचर के लिए अपने वर्तमान न्यौछावर किया है। मां मैं फिर से तुम्हारे ही गोद में जन्म लेना चाहता हूं, फिर से सैनिक बनूंगा और फिर से भारत मां के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा। दोस्तों ये तो खत की बात मैंने कही है। इस अफसर ने कहा कि बटालियन को ऑर्डर दिया गया कि अब आपको चलना है, मार्च करना है। ये कारगिल के समय की कहानी है। सबको मालूम था कि जब ऐसा कहा जाए कि सब अपने अपने घर खत लिख दो, तो उसका मतलब है 100% में से 99.99% वापस नहीं आएंगे। इस कमांड का मतलब ही यही होता है। कितनी बहादुरी से भारत मां के इस बेटे ने अपने परिवार को खत लिखा। दोस्तों मेरे एक दोस्त विनोद जोशी गए थे, वो भी एक अफसर के साथ बात कर रहे थे। वो कारगिल लड़ाई के समय गए थे युद्ध क्षेत्र में। दोस्तों अप्लाई तो हम दोनों ने करा था, लेकिन मेरा नंबर नहीं लगा, उनका लग गया। बचेंद्री पाल की अगुवानी में विजय रैली चली। उस समय जो था वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, और ये रैली थी बाइक के ऊपर। मोटरसाइकिल पर बचेंद्री दीदी और उसके साथ 6 महिलाएं, और सपोर्ट के अंदर ये विनोद जोशी और मेरे एक और दोस्त राजू शाह। तो ये लोग गए। कहते एक अफसर ने एक जवान के शरीर के ऊपर के यूनिफॉर्म में से एक खत निकाला, जो खत उसके घर से आया था। वो खत में लिखा था, बहुत बड़ा लंबा खत था, लेकिन मैं मेन लाइन कहता हूं। राजपूत का खून हो, बिल्कुल वापस मत आना, पीठ मत दिखाना, लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। मैं माँ बाबा और बच्चों का ख्याल रख लूंगी, चिंता मत करना। और इस बंदे ने इसके जवाब की शुरुआत की थी। वो जवाब वाला खत भी वहीं पर यूनिफॉर्म में ही था कि 1 इंच भी जमीन क्या जाने नहीं दूंगा, बूंद बूंद खून के हो जाएंगे, लेकिन मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, लेकिन 1 इंच भी जाने नहीं दूंगा। दोस्तों जिस देश की महिलाओं में अपने पति का ऐसा शौर्य बढ़ाने की ताकत है, उस देश की सेना कहीं पीछे नहीं जा सकती। इसलिए हमारी देश की सेना दुनिया की सेनाओं में अव्वल नंबर पर गिनी जाती है।
मेरा सद्भाग्य है, मैं सैनिकों के बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए काम करता आया हूँ। इसके चलते काफी सैनिकों का परिचय हुआ, कभी इनके साथ रहा हूँ, कभी खाना खाया, कभी चाय पिया। उनके साथ शेयरिंग से मालूम पड़ता है कितना ग्रेट काम कर रहे हैं। मैं आज आपको तीनों सिचुएशन की बात कर रहा हूं। एक आर्मी ऑफिसर के लिए डेंजरस, डिमांडिंग एंड डीमोरलाइजिंग। अब देश में देखिए दोस्तों, कैसी पॉलिटिकल सिस्टम है। सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, हमारे यहाँ की ओपोजिशन पार्टी चिल्लाती रहती है। क्या चिल्लाती है? कि तो इसके प्रूफ दो। ये ऐसा समय है जब दुनिया के सामने हमें सीना तान के खड़ा रहना है। तभी हमारे देश के अंदर लोग हमारे प्रधानमंत्री के पास से प्रूफ मांगते हैं, सेना के पास से प्रूफ मांगते हैं। आपको लगता है आप सेना में होगे तो आपका क्या मॉरल बनेगा उस समय? कितना डीमोरलाइजिंग लगता होगा। अपने साथी मर रहे हैं, ऐसे कठोर स्थिति में काम कर रहे हैं, और बाद में ये सब सुनना। और मैं आपको डीमोरलाइजिंग बताता हूं। रेलवे में ट्रैवल करते आप देखे होंगे, काला बक्सा लेकर के टॉयलेट के पास ये जवान आपको मिलेंगे। 15 दिन की छुट्टी सैंक्शन होती है, खत आते आते 4 दिन चले जाते हैं। 2 दिन ग्राउंड पर आने में, वहां आते हैं कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। देखिए, सीनियर ऑफिसर्स के लिए तो वैलिड एडवांस होता है, पर सिपाहियों की स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं होती। सिपाही बहुत सारे मूवमेंट में भी होते हैं, तो छुट्टी सैंक्शन होकर क्या है, उनको घर जाने के लिए ट्रांजिट में बहुत टाइम चला जाता है। उनके पास कहाँ रिजर्वेशन का स्कोप है। ये लोग ट्रेन में ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं, और हम में से कितने नागरिक, मैं तो गद्दार मानता हूं ऐसे नागरिकों को, जो इनको कहते हैं दूर हटो दूर हटो। इनको बाइज्जत अपनी कुर्सी पे ले आना चाहिए। ये टॉयलेट के पास सवारी करते हैं। रेलवे स्टेशन पर आप देखे होंगे, ऐसे पड़े होंगे कितनी ट्राइन करके। अभी देखिए, किसी का जम्मू कुपवारा में पोस्टिंग है और चेन्नई में घर है। आप इमेजिन तो कीजिए कितना ट्रैवल टाइम घर जाते पहुंच जाएगा। दोस्तों, एक बात बताता हूं, आप चौंक जाओगे। एक सैनिक ने जो शेयर किया था, मैं जब घर जाता हूं, अगर अनुकूलता हो गई तो 12-13 दिन घर में मिल जाते हैं। 20 दिन की छुट्टी मिली है तो 12-13 दिन घर में जाते हैं, बाकी 7 दिन ट्रांजिट में जाते हैं। ये 12-13 दिन में मैं पहले 4-5 दिन मेरे बेटे को बहुत प्यार करता हूँ। उसको घुमाता हूँ, सभी मिठाई खिलाता हूँ, नजदीक के शहर में ले जाता हूँ, ये सब कराता हूँ, नए कपड़े दिलाता हूँ। बीच वाले जो 5-6 दिन है, मैं धीरे धीरे उससे दूर होने चलता हूँ, ज्यादा समय नहीं देता। और पिछले 2-3 दिन जो बच जाते हैं, मैं उसके ऊपर चिल्लाता हूँ, मैं उसको डांटता हूँ, ताकि वो मेरी उपस्थिति में मुझे याद ना करे, मुझे धिक्कारे, ताकि वो मेरी राह ना देखे। जस्ट इमेजिन दोस्तों, इतनी डेंजरस, डिमांडिंग और डीमोरलाइजेशन की स्थिति में। अब देखो, मेरा काम आपको रुलाना नहीं है, मेरा काम आपका ध्यान खींचना है कि ऐसी स्थिति में हमारे लोग ये काम कर रहे हैं, क्या हम ऐसे स्ट्रेस में हैं? अगर नहीं है, और सेकंड थिंग, अगर ये लोग विदाउट स्ट्रेस इतने मिराकुलस ऑपरेशन कर पाते हैं, तो हमें अब उनसे सीखना है। मैंने तो सूत्र बनाया है, हम बॉर्डर पे देश के लिए मर नहीं सकते, क्या हम बॉर्डर के अंदर देश के लिए जी सकते हैं? देश के लिए मर नहीं सकते, देश के लिए जी सकते हैं। देश के लिए जीना मतलब अपने सेल्फिश एंगल में से निकल के बड़ा सोचना, पूरा देश के बारे में सोचना। और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग बिग, जैसे आपके अंदर एक्सपांशन मोटिवेशन आता है, द वेरी मोमेंट योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन। मैग्नानिमिटी, ग्रेटनेस, उम्दा तत्व, भलाई की सोच, ये सभी करने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आता है। आपको ताज्जुब होगा, आईसीयू में पेशेंट को निकालने के बाद उसको हरी हरी ग्रास दिखाई जाए, मछली घर दिखाए जाए, और अच्छे अच्छे कृत्य के बारे में बात कहा जाए, जैसे इस देश में ये हुआ, ऐसा बड़ा काम किसी ने कर दिया। ऐसा बड़ापन की स्टोरी सुनने मात्र से हीलिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो अब 2 बात। नंबर 1,
ये आर्मी के जवान तीनों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स, टेक्निक्स, मेथड नंबर 1, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द स्ट्रेस टू कम। अभी स्ट्रेस है, अरे इससे भी बड़ा आने वाला है, इससे बड़ा आने वाला है। देखो आज मेरे सामने राखी बहन चैलेंज आ गई, मेरे खुद के सामने चैलेंज आई आज मेरा यूनिवर्सिटी में वेबिनार था, उसके पहले 1.5 घंटे के पहले मेरे सगे साला साहब यानी मेरी पत्नी के बड़े भाई, ही गॉट डिटेक्टेड कोरोना। और आपको आश्चर्य होगा, हमारा एडमिन ईशान के वो पिता है, अभी भी ईशान इसी मोमेंट पर वेबिनार में है, अपने पिताजी को एडमिट करा के आया और अभी एडमिट कर ही रहा है। तो मेरे सामने न्यूज आए, मुझे एक वेबिनार उस समय करना, हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ईशान के साथ कोऑर्डिनेशन करना, घर में पत्नी को भी, और अभी भी ये वेबिनार कर रहा हूं। तो मैंने उनको भी बताया, घर में भी बताया, डॉक्टर को भी बताया, आई एम इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर ऑल्सो। अब देखिए हम कुछ कर नहीं सकते ना, उनको खबर भी पूछना, राइट। हालांकि सबको ये बताया कि जाना मत, ईशान क्वारंटाइन, राइट, बिल्कुल सभी जगह फ्लैट में डिक्लेयर करो। ईशान यहां है, उनको याद होगा जैसे उसने मुझे बताया, बेटा पहले डिक्लेयर कर दो कि पापा को ये है, बाद में एम्बुलेंस आएगी, पहले तुम डिक्लेयर कर दो अपनी कॉलोनी में, इट्स ए सोशल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में ये मानेंगे कि जब एम्बुलेंस आई तब तक बताया, तब तक हमें तो बताया भी नहीं। अब स्ट्रेसफुल स्थिति में लोग कितना बताने जाएंगे, पर फिर भी उसने बता दिया ताकि सबको मालूम पड़ गया पहले से। मैं क्या कह रहा था स्टेटमेंट, स्ट्रेस आने वाला है। अब आप कनेक्ट कर लो, जब मैंने ये कहा था कि मैंने अपने बॉडी का डोनेशन कर दिया, साइन कर दिया, फोटो चिप कर दिया, बता दिया मर सकते हैं, फिर गेट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो फिर छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस नहीं आएगा। तो एक्सीडेंट की स्थिति में मैं स्ट्रेस फ्री रह सका हूं, बिकॉज आई रियलाइज बहुत पहले से इससे बहुत इससे भी खराब हो सकता है, क्योंकि हमने ऐसी लाइफ ही बनाई है। अभी मेरा एक पुराना मित्र शेयर करता है, हम लोग सभी खाना खाने बैठे थे, मैं बिल्कुल पंखे के नीचे बैठा था, पत्नी ने आग्रह किया कि एक आम और ले लो, मैंने कहा नहीं अब बहुत हो गया। ऐसा करके मैं उठ गया, जैसे उठा धड़ाम से ऊपर से पंखा नीचे गिरा, बिल्कुल मैं पंखे के नीचे बैठा था। तो बोले मेरी पत्नी गले से लगे फूट फूट के रो रही है, मेरे मुंह में से क्यों निकला। अरे मैंने कहा भाई क्यों निकला नहीं, अच्छा हुआ निकला और मैंने माना नहीं, इसमें तेरा क्या दोष है। बोले अगर तू हाँ बोल देता तो ऊपर पड़ता। अब क्या करें। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो कि नहीं करते हो, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी कि नहीं उतर जाएगी कभी ना कभी। गैस स्टोव के साथ काम करते हो, कुकर काम करते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो गैस का बॉटल फट गया, कुकर फट गया, एक्सीडेंट्स नहीं होते क्या। एक्सीडेंट्स होते हैं। गांव में झोंपड़े में रहने वाले लोगों को भूकंप होने से वो मर नहीं जाते, हम तो पक्के मर जाते हैं। मैं तो बचा हूं ना भूकंप में, भुज में गुजराती में तमारा लमणे लखाયેલો હોય છે એટલે बची गयो। भूकंप की नहीं तो सुबह वो होटल का पूरा फ्लोर नीचे चला गया था। और ये चीजें सभी ध्यान देना चाहिए। हम एक्सीडेंट में से गुजरते लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान किस में जाता है, चलो बची गया। ध्यान ये जाना चाहिए कि अभी बच गए, कभी भी मर सकते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेस तो जान का ही है। और भय जो इतने हैं, मैंने भय बताए थे आपको, प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय, ये 4 चीज जाने का भय है। और 4 चीज के साथ स्ट्रेस जुड़ा है। जान जाने का भय, पद खोने का भय, इतना काम नहीं करोगे तो पद चला जाएगा, इतना काम नहीं करेंगे तो असाइनमेंट चला जाएगा, इतना काम नहीं करेंगे तो डिमोट कर देंगे प्रमोट के बदले, या कुछ फिनेंशियल इक्वेशन बिगड़ जाएगा, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। पद भय, फिर सैलरी रिड्यूस हो जाएगी, इनकम रिड्यूस हो जाएगी। धन भय, और समाज में हमारा क्या स्थान रहेगा। मान भय। 4 ही भय है और चारों भय के साथ स्ट्रेस जुड़ा है।
आज मुझे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में एक सवाल मिला। क्या सवाल मिला? कि कैसे निर्भयता लाए बच्चों में। मैंने कहा मैं अपनी स्टोरी कह देता हूँ। मेरी बेटी छोटी थी तो घर में बंद करके जाते थे, अंधेरे में अकेले में सो जाना तेरे को, सामने पुलिस वाला आए तो हाथ मिलाना, जय हिंद बोलना। तो भूत का डर नहीं, बाबा का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, छिपकली का डर नहीं, सांप का भी डर नहीं। ये तो प्रक्रिया है, सिटी में रहते हैं तो कभी ना कभी पुलिस से काम पड़ेगा भाई। गेट प्रिपेयर्ड, हैव फ्रेंडशिप विद द पुलिस पीपल। इसके लिए कुछ गुनाह करने की जरूरत नहीं है, आपके घर के आसपास कोई ना कोई ड्यूटी पर होता है। मैं एक बार सूरत आया था, कुबेर नगर के एक मंदिर में ठहरा था, वहां की युवाओं के लिए मेरा कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद स्वामी जी को मैं बहुत भा गया, तो बोले कि सुरेश भाई क्या करना चाहिए, आप तो पुलिस आर्मी सभी के लिए बात करते हो। मैंने कहा गर्मियों के दिन है, कुबेर नगर के आसपास जितने भी पुलिसकर्मी खड़े हैं, चलो हम छाछ बेच पहुंचाए। फिर मैंने सुना कि उन्होंने तो परंपरा बना दी और रोड को लंबा कर दिया। अभी मुझे एरिया सभी याद नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो लोग रेगुलरली छाछ पिलाते थे। फिर कोई और संस्था भी जुड़ी। मैंने कहा इतने से नहीं चलेगा, इसका चेप लगाओ, इन्फेक्शन लगाओ। अब तब तो कोई कोरोना नहीं था, ये तो मैं शायद 10 साल पुरानी बात कह रहा हूं। तो ये तो हमारे आसपास लोग होते ही तो है हमेशा के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए कौन रोकता है। बड़ा बनना, अच्छा बनना, दूर का देखना, लंबा देखना। तो तुम्हारे सामने मास्टर का थीसिस कंप्लीशन करने का काम आया है, वो तो कुछ नहीं है, पीनट है, पीनट। इशित पटेल सुन रहे हो ना? आगे जाके तुम्हारे सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ये तो कुछ नहीं है। सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर द बिगर स्ट्रेसेस। सो दिस इज अ वंडरफुल लर्निंग एपिसोड। अभी जिसके जीवन में जो भी स्ट्रेसेस है उसको ले लो, लर्निंग पॉइंट, mastering the techniques and technology tools. Wonderful. Thank the university and thank the people and thank the officer to give you that stress. कि चलो चलो सुहाना भरम तो टूटा, आगे की पंक्ति तुम गा लो। तो भरम तो टूटा कि ये जैसा माना था वैसा नहीं है। हमेशा पड़ोसी का गार्डन का ग्रास हमेशा ज्यादा हरा लगता है, ये अंग्रेजी में कहावत है, राइट? मूल बात आ जाए फिर से, आर्मी कैसे प्रिपेयर्ड रहते हैं। मैंने ट्रेनिंग का एक सेशन देखा था, उसके अंदर रात में सोए हैं तो साथ में मशीन गन लेके सोए हैं और पूरी अपनी सर्वाइवल की किट का रक्षक भी बगल में ही है। रात को रैंडमली कभी भी विसल बजे, उनमें ऐसे ही तैयार होके खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि चलो बाद में रक्षक लेंगे, जरा बाहर जाके देखते हैं, फिर गन लेंगे, ऐसा नहीं। 24 आवर चौकन्ने, ऑल द टाइम। इतने हैवी जूते, अभी जब ड्यूटी पर होते हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन अलर्ट स्थितियों में तो जूते पहन के, बैग को लेकर के, गन को साथ में लेकर के, समय मिले तो बैठे बैठे सोना, खड़े खड़े सोना, आड़े पड़ के सोना, कैसे भी सोना। दोस्तों, मैं एक आर्मी ऑफिसर का मेहमान था जम्मू। अब सिक्योरिटी की वजह से मैं नाम नहीं दे सकता, आज तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर पाकिस्तान की बुलेट का आज भी टारगेट है। मैं उनके घर मेहमान था, उन्होंने हमारी अच्छी तरह आवभगत की। फिर उन्होंने कहा कि सुरेश भाई अभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ एक गाड़ी आएगी, वो आपको भी ले जाएगी। आपको कहीं और ठहरना है, मुझे कहीं और ठहरना है। बोले मैं डेली अपना घर बदलता हूँ। देखिए, अपने पत्नी बच्चों के साथ एक ऑफिसर इसीलिए नहीं रह सकता कि वो हिट लिस्ट में है। कैन यू इमेजिन? डेली मूवमेंट, कहाँ सोना, कहाँ खाना, कहाँ रहना, कोई पक्का पता नहीं। बोले तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए तुम्हारी सिक्योरिटी भी मेरे जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें भी कहीं ले जाएंगे। मुझे भी नहीं मालूम कहाँ ले जाएंगे, लेकिन पूरी व्यवस्था है। कहीं मैं जाऊंगा, कहीं तुम जाओगे। फिर अच्छी दोस्ती बन गई, मैंने न्योता दिया, इंसिडेंटली छुट्टी लेकर के आए अहमदाबाद, तो मेरे घर पधारे। उनके आने से पहले कमांडो ने मेरा घर घेर लिया।
फिर वो तो नॉर्मल जीन्स टी शर्ट में दूसरी सिंपल गाड़ी से आए, बोले कि ये स्थिति ऐसी करनी पड़ती है क्योंकि मेरी सभी मूवमेंट को कहीं ना कहीं से ये लोग ट्रैक करते रहते हैं, तो मैं गाड़ी बदलता रहता हूँ। उनके चलते मेरा कोई रेफरेंस कर दिया होगा, तो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए इनका ऑफिसर का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का मुझे मौका मिला। शिपाल भाई, मेरी खुशी का एजम्पशन लगाइए, मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एसपी की पोजीशन होती है पुलिस की, एससी जो पोजीशन वाले ऑफिसर है, ऐसे चुनिंदे 30 ऑफिसर को माउंट आबू में ट्रेनिंग देनी थी, एंड आई वाज द फैकल्टी। 3 दिन उनके साथ मुझे रहना था, इन ऑफिसरों के साथ खाना खाना था। तो घर पे एक गाड़ी लेने आई, अभी हम अडालत त्रिमंदिर पहुंचे, मेरी गाड़ी में भी मेरी साइड में 2 अफसर बैठे थे गन के साथ। त्रिमंदिर पहुंचे, बोले सर आप आराम से नीचे उतर जाइए, एक दूसरी गाड़ी आगे खड़ी है उसमें चले जाइए। मैं अंदर गया तो उसमें भी सिविल ड्रेस में 2 बैठे थे गन के साथ। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा माउंट आबू तक चलेगा। तो मुझे मल्टीपल गाड़ी में बिठा के बोले हमारे सभी मूवमेंट पर बहुत सारे लोगों का ध्यान रहता है, तो आपकी सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ये तो मजा आ गया यार, ऐसी स्थिति में अगर शहीद हो गए तो भी अच्छा तृप्ति मिलेगा कि अच्छा काम करते मरे। पर एनीवे वो 3 दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। मैंने जब कहा कि आबू आया हूँ, देखिए ये एकेडमी वहां जहाँ किरण बेदी ने ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने कहा मैं रात में चलने जाऊं। तो बोले चलने तो जा सकते हो लेकिन साथ में एक अफसर आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो आबू रेगुलर आता हूँ। बोले अभी आईएसए के मेहमान होने, तो अब आबू में कहीं पर भी जाओगे हमें आपके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ दीजिए, मैं कैंपस में ही चल लेता हूँ। मेरे लिए इतनी सेवा, मुझे जहां सुलाया गया था बाहर 24 घंटा पहरा था। मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं मारेगा। बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरा कैंटोनमेंट अंडर सर्वेलेंस है। तो ऐसे अनुभव में से गुजरते तो मालूम पड़ता है कि ये लोगों का कितना स्ट्रेस है, जान कभी भी जा सकती है। तो कुल मिला के अभी तक मैंने जो बताया एक ही सूत्र है, एक ही शब्द है, प्रिपेयर्डनेस। Why you feel stress? Because you are not prepared for that. You never thought like that. You never assumed like that. ऐसा कभी होगा ऐसा सोचा नहीं और सडनली आ गया लोड। तो अभी मान लीजिए कि राखी बहन केवल 19 साल की बच्ची है, केवल 19 साल, और अभी 2nd ईयर की स्टडी चल रही है, और सुरेश पटेल उनके कोच है। मान लीजिए वो एमबीए की स्टूडेंट है या फिर कंपनी सेक्रेटरी की भी हो सकती है, कोई भी। तो कैसे कोच करता मैं कि देखो अभी से प्रिपरेशन शुरू करो क्योंकि तुम्हें बहुत सारा करना है। तो सबसे पहले तो मेरे आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाओ, जिसमें सुबह में तुम्हें 4 बजे उठाया जाएगा और सुबह 5 बजे मॉर्निंग ट्रैक करके जाएंगे, और गुरु शिखर के ऊपर से जाके तुम्हें सनराइज देखना है। भले आज 24 दिसंबर हो, कड़ाके की ठंड हो, कुछ मैटर नहीं करता, और सन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तो टाइम पे ही पहुंचना है। फिर वो कहती पर सुबह में इतना जल्दी, अब तुम्हारा टाइम बदल गया है, अब 3:30 बजे उठना है, और तुम्हें स्पेशल व्हीकल दिया जाएगा। यू विल रीच माउंट आबू ऑल अलोन, गुरु शिखर ऑल अलोन, क्योंकि तुमने सवाल ही क्यों पूछा। ऐसी सख्त 6-7 दिन की आउटबाउंड ट्रेनिंग में से गुजरे 2nd साल की बच्ची, तो कैसी प्रिपेयर हो जाएगी। ये प्रिपरेशन फिर कोई भी स्ट्रेस को हैंडल करने में मजा कर देगी। इसीलिए आर्मी के रिटायर्ड अफसर कॉर्पोरेट कंपनियों में टॉप पोजीशन पर बैठते हैं। ऑफिसर लोगों की बात कर रहा हूँ, सिपाहियों की नहीं, जिनके पास पहले भी डिसीजन मेकिंग के अथॉरिटी पावर होते हैं। तो ये लोग कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खूबसूरती से निभा लेते, क्योंकि उसको तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस तो कोई स्ट्रेस लगता ही नहीं। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो अफसर रिटायरमेंट होने के बाद बंबई के अंदर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस, पूरे देश में फैली हुई कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके चीफ ऑफिसर है। तो मजेदार बात है, को स्ट्रेस के लिए प्रिपरेशन नंबर 1। आई थिंक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं वो 3 क्लिप जिसमें कंप्यूटर को ठोकते हैं। ये है परम मूर्खता का प्रदर्शन, क्योंकि कंप्यूटर को मारने से या कीबोर्ड पटकने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है। ये केवल वेंटिलेशन है, और अमेरिका यूरोप में तो इसकी टेक्निक वहां के डॉक्टरों ने निकाली है। वो इनको खिलौने देते हैं, मारने के खिलौने। वो जब गुस्से में आ जाए तो ये खिलौनों को फेंकना है,
तो वो टीवी पर फेंकते हैं तो टीवी नहीं टूट जाता, लेकिन टीवी पर जोर से फेंक सकते हैं। ऐसे फेंकने के फिर तोड़ने के सामान आते हैं। अभी मुझे किसी ने स्ट्रेस बस्टर एक छोटा सा गिफ्ट किया था, एक छोटी सी पित्तल की रिंग है, हाथ में ऐसा पकड़ के गोल गोल घुमाना। अब मैं ढूंढ रहा हूं मैं किसको गिफ्ट में दूं। कोई चीज बार बार गोल गोल घुमाने से तुम्हारा स्ट्रेस दूर होगा? अरे तुम केवल डेविएट करोगे, वो केवल तुम्हारा ध्यान एक जगह से दूसरी ओर खींचने की टेक्निक है, काम करती है, मैं ना नहीं कहता। कई लोग क्या करते रहते, पेन को ऐसा करते रहते हैं, राइट। कई लोग पेन के ऊपर की जो जेब में डालने वाली क्लिप होती है ना, ढक्कन, उसको खींचते रहते हैं। ये क्या है? डेविएशन। वाह, अमीषा की गुड़िया आ गई है आज तो, शाबाश। सबसे बड़ा घर में कोई स्ट्रेस बस्टर है तो ये है। ये गुड़िया का नाम क्या है अमीषा? जायशा। जायशा, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोगों ने मेरे जेस्चर में से क्या सीखा? अभी मैंने जो जेस्चर किया, अमीषा के साथ बात की, उसका नाम पूछा, उसमें से क्या सीखा आपने? कहां ध्यान है आपका? यस उत्पल, क्या सीखा उत्पल? हेलो, वेलकम કર્યા તમે અમને। उसमें से स्ट्रेस के संदर्भ में क्या सीखा? यहां तो बात केवल स्ट्रेस की हो रही है। श्रीपाद सर, डिविएशन। आपके लिए तो शायद डेविएशन। Kids are the best stress buster basically, but still. That is called present moment awareness. देखिए स्ट्रेस में स्थिति क्या है, हम जो अपेक्षित नहीं रखते वो आते हैं, तो हम पास्ट में चले जाते हैं। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था और ये आ गया है। सो वी लूज प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस एंड वी जंप इनटू पास्ट। आर यू गेटिंग इट? पास्ट। सेकंड थिंग, फ्यूचर की वरीज। मैंने ये भी कहा कि सबसे बढ़िया स्ट्रेस बस्टर तो ये गुड़िया है। तो घर में बच्चे हो, इससे बढ़िया कोई खिलौना नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या खिलौने हैं। अब बच्चे ना हो तो क्या करें, इंसान से बेहतर और कोई खिलौना नहीं हो सकता। चलो सभी माँ और पिताओं को मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप अपने बच्चे के दिन, बर्थडे के दिन क्या देते हो? मूंगफली देते हो कि मूंगफली के छिलके देते हो? हम मूंगफली के छिलके देते हैं, मूंगफली नहीं। ફોતરા આપીએ છે, ફોતરા બર્થડે ગિફ્ટમાં સામાન આપીએ છે। એક સામાનની औकात નથી બાળકને ખુશ કરી શકે। કોઈ બાળકને આપવાની બેસ્ટ વસ્તુ હોય તો તમે તમારી જાતને આપો। गिव योरसेल्फ एज अ गिफ्ट, गिव ए क्वालिटी टाइम। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से गिफ्ट देना बंद कर देना। गिफ्ट जरूर दीजिए, लेकिन गिफ्ट देते समय आप मौजूद हो क्या? आपकी इंटेंशनलिटी है क्या? गिफ्ट उसको चाहिए वो मिल रही है कि वो आपकी मर्जी से दे रहे हो? और कितना समय बिताते हो इनके साथ? जिसका बर्थडे होता है वो छोटे बच्चों की तो वाट लग जाती है, क्योंकि जिसका बर्थडे है उनके पेरेंट्स सभी अपने मित्रों को बुलाते हैं, उन सबको खाना खिलाते हैं। गृहिणी पूरा का पूरा समय अपने बच्चे के बर्थडे के दिन मेहमानों की आवभगत में लगा देती है और पूरी स्ट्रेस होकर के रात को 11 बजे बिस्तर में जाती है। ना उसके पास स्टोरी सुनाने को कोई टाइम, और लगती है किचन में दोपहर के बाद अगर शाम का कार्यक्रम है। ऐसा है कि नहीं है? देख लीजिए, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन है उसके साथ समय जा रहा है, किसी और के साथ समय जा रहा है। मैं किसी और का मतलब गलत मत निकालना। यू आर इन अ सेलिब्रेशन मोड, इनवाइट प्रीवियस डे, इनवाइट नेक्स्ट डे, इनवाइट संडे, करो ना सेलिब्रेशन, क्या प्रॉब्लम है? या बच्चे के साथ सेट करो कि भाई सेलिब्रेशन कब करना है, लेकिन तेरा बर्थडे तो आज है। ध्यान जा रहा है? क्या देंगे? एक इंसान के साथ दूसरे इंसान से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकती। अपने आप को दो। हाँ राखी बहन। सर मैंने बहुत साल
हर साल होली दिवाली सर हमारे काम में ही जाते थे, तो बच्चों का बर्थडे सर, मैं खुद बहुत ही जॉवियल पर्सन हूँ, इसलिए मैं कभी भी उस बर्थडे के दिन, हाँ जब छोटे थे उनके फ्रेंड्स को जरूर बुलाती थी, बट उस दिन कंप्लीट हॉलीडे लेकर हमेशा बच्चों के साथ उनको नहलाने से लेके उनको क्या कपड़े पहनने हैं, क्या उनको टॉयज चाहिए, उनको कैसे खेलना है, क्या कहानी सुननी है, इफ दे आर हैप्पी उनको जो फूड पसंद है वही बनाने का, उस दिन कंप्लीट इवन हस्बैंड के साथ भी बात नहीं करने का, ओनली फॉर किड। एंड दैट लाइक मेरे ऑफिस में 3 दिन पहले से मालूम होता था कि मैडम इस दिन घर पे आज नहीं आने वाली है, इसलिए जो काम करना है पहले करने का। गुड 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 एग्जाम्पल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग इसमें से काफी सीख सकते हैं। कीपिंग दैट डे एज ए हॉलीडे, राइट, उस दिन छुट्टी रखनी। मेन चीज तो यही है कि उसको एहसास हो कि मेरा आना मंगल है, मेरा आना शुभ है, मेरा आना वेलकम है, मेरा इस घर में सही में स्वागत है, मेरे आने का दिन का इतना इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहां तक कहूंगा केवल बर्थडे ही क्यों, बहुत सारे दिन ऐसे बना सकते हैं ना, बहुत सारे दिन ऐसे स्केड्यूल कर सकते हैं। फॉरेन में रहने वाले लोगों को लिए बर्थडे सैटरडे संडे सेलिब्रेट होता है, एनिवर्सरी सैटरडे संडे सेलिब्रेट होती है। जर्सी के अंदर तो गरबा 1.5 महीना चलता है, सैटरडे संडे नवरात्रि। अभी रजनीकांत साहब का बर्थडे आया है गुरुवार को, राइट। अब उसको कैसा लगेगा अगर जयश्री बहन ऐसा कहे कि संडे को मैं विश करूंगी तुम्हें, हाउ ऑड इट विल बी। तो बिल्कुल ऐसी ऑडनेस जिंदगी में ले आते हैं और फिर कहते मजा जौमतू नहीं, चौथी जौम, खेड़ा जिला वाले बहुत मिलेंगे आपको, जौमतू नहीं, चौथी जौम भाई। इसमें जर्सी वाले बुरा ना माने, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूं, अभी तो भारत में भी ऐसे हाल होने लगे हैं कि लोग रीस्केड्यूल करने लगे सभी चीजों को। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि गुरुवार का बर्थडे गुरुवार को ही मनाओ, घर में सभी की अनुकूलता की स्वीकृति के अनुरूप मनाना, राइट। पर ऐसा ना हो कि फिर उसको बिल्कुल दुनिया की नजर के अनुरूप सेट करें। तो ना तो हम घर के रहते हैं ना दुनिया के रहते हैं। शादी में अभी हमारे भाई पोषक भाई की बेटी प्रिया की शादी होने वाली है, तो मैं अभी से पोषक भाई को कह देता हूँ, प्रिया की शादी में सबसे ज्यादा कोई नाचेगा तो पोषक भाई नाचेगा और मैं नाचूंगा, और कौन नाचेंगे भाई। अभी इनके माथे पे अभी इतना टेंशन हो तो अपनी बेटी की शादी को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी का आरंगेत्रल था, मैंने ये पहला फंडा बना दिया। मेरी बेटी जिसने 9 साल तक भरतनाट्यम की शिक्षा ली, अब उसका दीक्षांत कार्यक्रम है, 3 घंटे मैं उसको अपलक दृष्टि से नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा। तो मैंने न्योता जो बनाया वो सभी मेहमानों को ऐसे भेजा कि समय पे कार्यक्रम शुरू होगा, अंत में आइसक्रीम होगा, बीच में छोटा सा जलपान विराम होगा। आप आइसक्रीम एक नहीं, जितना खाना चाहिए इतना खाएंगे और मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पूरा समय कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और केवल उन्हीं को भेजा जिनको मेरी बेटी, जिन्होंने मेरी बेटी को देखा था, जानते थे। ऐसा ही नहीं कि चलो जितने भी उनको बुला ले, तो जितने भी बड़े प्यार से आए, पूरा कार्यक्रम अटेंड किया और आइसक्रीम मैंने बनवाया था। अब आपको लगेगा इतना वर्णन क्यों कर रहे हो, मैं इसलिए इतना वर्णन कर रहा हूं कि आपको यह एहसास हो जाए कि सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। वीडियो में को मैंने कहा प्रीवियस डे आ जाना, बोले अगले दिन क्या ना, मैंने तो बहुत काम किया। मैंने कुछ नहीं, हम हॉल में जाएंगे, हॉल में तू ऐसी जगह अपना सेट कर जहां से तू किसी के बीच में न आए। अब मैं सभी को दोस्तों को देखने के लिए बुलाऊं और तू सभी के आगे आ जाए, तो उसने जो स्टैंड बनाया था वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, यहां नहीं हो सकता। आप याद करो, शादियों में सबसे ज्यादा किसी को कोई परेशान करने वाला होता है, वो गौर महाराज को यूं को नहीं मारता है, कन्या के बाप को यूं को नहीं मारता है, सबको हटाता है। और वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और सबको वीडियो में इनकी बैक दिखती है, उनकी पैंट की साइज मालूम पड़ जाती है कि इसकी कमर की लेंथ क्या होगी। अब जो हंस रहे उसको मालूम पड़ गया होगा कि क्या दिखता है। तो क्या ये देखने के लिए हम 3 इडियट का सीन देखने गए थे कि शादी देखने गए थे? तो वीडियो वाला कहता है
कि अब रिलीफ रोड जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाइए, कैमरा लगाइए पीछे, और इतना लंबा केबल उसने अपनी जिंदगी में कभी खरीदा नहीं था। टाउन हॉल इमेजिन कर लीजिए आप, कैमरा पीछे लगे और हॉल स्टेज पर तक पहुंचाना हो, इतना बड़ा केबल उसने स्पेशली खरीदा, और ग्राफिंग ऐसे ही हुआ जैसे मैंने चाहा। और मैं अपलक दृष्टि, बिना, कहते हैं ना, आंख को मिचकाए, मैंने पूरा अपना आरंगेतर देखा बेटी का। और फिर बाप बेटी दोनों आरंगेतर समाप्त होने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर खुशी से रोए। वीडियोग्राफर ने बहुत खूबसूरत चित्र खींचे हैं, हमारे वो भावुक तत्व। तो मेरा कहना यह है कि मैं पूरी जिंदगी इसको याद रख सकता हूं। आई चेरिश दैट मोमेंट, राइट। फिर देखिए, कार्यक्रम के अंत में आइसक्रीम था, तो सबके साथ में आइसक्रीम खा सका, सबको मिल सका। तो मेरा पॉइंट था कहने का, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जायशा का आना ये मेरी प्रेजेंट मोमेंट है। अगर मेरा ध्यान गया, मैंने देख लिया, अभी तक जो ऑडियंस में नहीं है वो कोई नया आया है, अगर मैं उसको इग्नोर करूं तो आई एम लूजिंग दैट प्रेजेंट मोमेंट। चाहे जायशा को अच्छा बुरा लगने का सवाल नहीं है, शायद हमेशा अमित को बुरा लगने का सवाल नहीं है, सवाल मेरा बुरा लगने का है खुद को, कि मेरी जिंदगी में एक जिंदा इंसान कोई आया है। देखिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको, खिलौनों से स्ट्रेस नहीं जाएगा, वो स्ट्रेस बस्टर से कुछ नहीं होगा। शिवपाल ने परफेक्ट नोट किया, इट इज सिंपल डेविएशन। बट यहां डेविएशन चीज में नहीं था, यहां इंटेंशनल डेविएशन इंसान में था। अब पकड़ में आ रहा है? स्ट्रेस दूर करना है तो शेयरिंग क्यों करना है? क्योंकि शेयरिंग में आप इंसान के साथ जुड़ते हो। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपने स्ट्रेस दूर कर सकता है, बाकी सब डेविएशन है। अब देखिए, डेविएशन शब्दों को पूरा करते हैं। क्या क्या लोग डेविएट करते हैं? तमाम प्रकार के नार्कोटिक्स। ड्यू टू स्ट्रेस दे गो ऑन एडिक्शन, ड्यू टू स्ट्रेस दे गो ऑन लिकर, ड्यू टू स्ट्रेस दे गो ऑन मॉर्फिन, कैफीन। जितनी भी डेंजरस ड्रग्स है वो सभी में जाते हैं। मैं मानता हूं ये सब नपुंसक और कायर लोग हैं, जो प्रॉब्लम को खुली छाती फेस करने के बदले भगोड़ापन भाग जाते हैं। क्योंकि नशा करके तो भाग जाएंगे ना, बेहोश हो जाएंगे। तो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सब कोई नुकसान नहीं करता। थोड़े शरीर में सेल खराब कर देते होंगे, कैंसर होता होगा। इससे बड़ा कैंसर तो ये है कि भाग जाना, प्रॉब्लम को फेस करने के बदले भाग जाना, भगोड़ापन। और ये पूरी इंसान की जो पोटेंशियलिटी है उसको मार देता है। सिगरेट का तो कई लोग, तंबाकू कई लोग सालों साल खाते हैं, कैंसर नहीं होता। पर इनके खाने से, जो पहले मैंने कहा, वो भगने वाला पान, उससे टोटल पोटेंशियल खत्म होता है। दोस्तों, ध्यान जा रहा है क्यों ये सब स्कूल कॉलेज में करना है? ये काम आपको काम दिखेगा। आज हमारी पूरी नई जनरेशन क्यों इस कचरे के पास जा रही है? उनके भी स्ट्रेस है ना, पेरेंट्स सुनते, स्टडी में ज्यादा दम नहीं है, कलीग्स प्रेशर, आई मीन क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर, कभी फैशन के पीछे दौड़ रहे, राइट, कभी चीजों के पीछे दौड़ रहे, और क्लैरिटी नहीं है क्या करना है जिंदगी में, कुछ पढ़ते नहीं है। तो मल्टीपल स्ट्रेस, इससे सुइसाइडल अटेम्प्ट, मर जाने तक पहुंच जाते हैं, मालूम ही नहीं है। दोस्तों, इसीलिए शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बात करना अति महत्वपूर्ण है। आपको लगे बात करने के बाद भी कुछ नहीं निकला, तो मैं कहता हूं तो भी बात कीजिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आउट। यहां मैं वेंटिलेशन शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि आपको टेक्निक समझा रहा हूं। जब आप शेयरिंग करते हो, शायद सामने वाले के लिए वो वेंटिलेशन हो सकता है, लेकिन आपके लिए ओपनिंग अप है। व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग, सेवरल थिंग्स कम्स अप। बहुत सारी चीजें अपने अंदर स्पष्ट होने लगती है जब शेयरिंग करते हो। दोस्तों, लिखने से थोड़ी कम होगी, बोलने से ज्यादा होगी, और रूबरू बैठने से 100% होगी। क्योंकि सामने वाला आपके चेहरे के भाव को पकड़ के कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि आप कुछ दो चीज और बताओगे।
स्ट्रेस वाली स्थिति के अंदर जब कोई सुनने वाला नहीं है तो व्यक्ति का खुद के अंदर दम घुटने लगता है, और अगर सुनने वाला भी, जैसे लॉकडाउन में तो 1 या 2 व्यक्ति है या 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, इससे अधिक कोई है नहीं, और ये भी अगर सुनने वाले नहीं है तो व्यक्ति के अंदर कितना दम घुटता है, किसको कहे। कब तक यूं खामोश रहे और सहे हम। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी। वैसे अमिताभ के गले में ये बहुत अच्छा लगता है जैसे उसने कहा है, पर वो रेफरेंस कुछ अलग है। यहां तो केवल इतना ही कहना है कि दम घुटेगा जब आप शेयर नहीं करोगे, तो शेयर कर लो। शेयर करते करते समय सब कुछ शेयर करो। देखो, शेयरिंग सिखाता हूं। क्या कर रहे हो, शेयरिंग नंबर 1। क्या सोच रहे हो, शेयरिंग नंबर 2। क्या फील कर रहे हो, शेयरिंग नंबर 3। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, तो दैट इज शेयरिंग ऑफ फीलिंग। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूंगा, तो ये है शेयरिंग नंबर 2। और अभी क्या कर रहे हो, तो खाना पका रहा हूं, शेयरिंग नंबर 1। या कहीं से कहीं जा रहा हूं, शेयरिंग नंबर 1। फिजिकल मूवमेंट, मेंटल थॉट्स, इमोशनल टर्ब्यूलेंस, सभी को शेयर करो। तो मैं आपके सामने एक शेयरिंग का एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको पकड़ में आए शेयरिंग कैसे करते हैं। ये एपिसोड का थोड़ा पार्ट में पहले कह चुका हूं। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, करीब 2500 से अधिक लोग कर्मी काम करते हैं, मल्टीनेशनल ब्रांचेस। वो व्यक्ति के शेयरिंग के 3 कंपोनेंट आपको पकड़ने हैं। सर, मैं जब घर में जाता हूं, मुझे मेरी पत्नी दिख तो जाती है, लेकिन वो कुछ ग्रीटिंग नहीं करती, वो सीधी किचन में जाती है और जाते जाते पूछती है कि अभी खाना खाओगे कि देर है। अगर मैं समय बता देता हूं कि देर है, तो किचन में जाने के बदले वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर अब तुम क्या करते हो? फिर मैं या तो कमरे में चला जाता हूं। मैंने कहा, क्या तुम्हारे दोनों के कमरे अलग अलग है? बोले, हाँ, घर बहुत बड़ा है, तो मेरा एक ड्राइंग रूम है, फिर लाइब्रेरी रूम है, सिनेमा थिएटर है, फिर एक के अंदर मेरा जिम है, तो मैं यूजुअली जिम के रूम में घुस जाता हूँ या फिर लाइब्रेरी में घुस जाता हूँ, फिर शॉवर ले लेता हूँ, और जब समय होता है मैं डाइनिंग टेबल पर बैठता हूँ। मैंने कहा है, समय तो मेरी पत्नी किचन में जाके असिस्टेंटों के साथ मिलके गर्म भोजन मेरे डाइनिंग टेबल पर परोस देती है, बाकी के बोल्स रख देती है और फिर चली जाती है। सर, मैं अकेले में खाना खाता हूं। ऐसा कहते कहते एक बच्चे की भांति वो ऑफिसर रो पड़ा। फिर मैंने उसको रोने दिया। मैंने बोला, बच्चे तो होंगे, बच्चों के साथ तो समय जाता होगा। बोले, अगर मैं जल्दी आ गया, बच्चे होमवर्क करते हुए मिलते हैं, ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, तो बस कैसे हो पापा, मैकेनिकली, और फिर रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं स्टडी रूम में, मैं ड्राइंग रूम में बैठूंगा। मैं जब उनके स्टडी रूम में जाता हूं तो अपनी मुंडी ऊपर किए बिना ही वो अपना होमवर्क कंटिन्यू करते हैं। मैं पूछता हूं तो जवाब देते हैं, लेकिन दोनों की आंखें, बेटी और बेटा दोते, दोनों की आंखें रूखी सूखी होती है, उसमें कोई उष्मा नहीं, कोई प्यार नहीं। सब कुछ है सर, जिंदगी नहीं है। मैंने कहा, तुम सोचते क्या हो? बोले, मैं इतना तो करता हूं परिवार के लिए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं समझते। मैंने कहा, इतना करते हो, इसमें क्या करते हो? बोले, इतना वैभवी मकान है, घर में सब कुछ सेवा चाकर है, सबको जाने के लिए व्हीकल की व्यवस्था है, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं। मैंने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं दिख रहा है? बोले, हाँ, मेरा एक दोष है, मैं ऑफिस में बहुत काम करता रहा, लेट आता तो पत्नी की फरियाद थी, मैं समझाता गया, और धीरे 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 उसने ऐसी रूप पकड़ ली, और मेरे साथ जब बोलना होता है तो झगड़ा करके ये कहती है कि तुम्हारे पास हमारे लिए समय कहाँ है, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है तो हमारे पास भी समय नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो खाना तो दे दूंगी, और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रखना भी जिम्मेदारी है, तो ताजा गरम दूंगी,
लेकिन बाकी कोई उम्मीद मत कीजिए मुझसे। आपका ध्यान जा रहा है शेयरिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है, घटनाएं क्या क्या घट रही है, मन में क्या क्या सोच चल रही है, राइट? कौन सा पेन है, एक लाइन कितनी भारी है, सब कुछ है, जिंदगी नहीं है। देखिए, ये तो काउंसलिंग लंबा चला था, लेकिन मैंने फिर कहा जिंदगी है क्या, तो फिर किसको जिंदगी देखते हो? अभी ये व्याख्या सभी के लिए कॉमन है। खुशहाल परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, अपने अच्छे मित्र, कुछ नहीं करने का आराम, और करने के शौक को पूरा करने के लिए समय, अनुकूलता। लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन समय होना चाहिए ना, अनुकूलता होनी चाहिए फिजिकल। कई बार घर में बुजुर्ग है, घर को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन एक बार जिंदगी जीना आ गया तो मजा आता है। मैं शिकागो में जिस विजय भाई के घर मेहमान था, जिनका मैं कल जिक्र कर चुका हूं, उन्होंने कहा था कि सुरेश भाई, मेरे घर में बुजुर्ग माँ है, तो हम दोनों साथ में नहीं निकल सकते, हम आपको घुमाने ले जाएंगे, लेकिन शायद मैं आऊंगा या फिर मेरी पत्नी आएगी। अब देखिए क्या मंगल सीन था, हम तीनों थे, मम्मी को भी साथ में ले लिया। मैंने कहा हम तो क्वालिटी टाइम साथ में बिताने आए, हम तो प्यार भरा नाता, जो नाता बना है वो एंजॉय करने आए, थोड़ा घूमने आए। तो मूल बात यह है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कनेक्शन के अलावा कोई बड़ा स्ट्रेस बस्टर नहीं है। हालांकि मैं आपको छोटे छोटे अभी टेक्निक्स तो बहुत सिखाने वाला हूं, पर ये अभी जो फाउंडेशन का जो काम हमेशा पहले 4-5 एपिसोड में चलता है, एक बार आपका ध्यान चला जाए उसके ऊपर। अब हमारे देश की अच्छी परंपरा है, देखिए अब सब आपको साफ दिखने लगेगा कि हमने कितनी विकृत बना दी है। हमारे सभी उत्सव में मिलना, खाना पीना कॉमन है, उत्सव का नाम ही तो वही है। दिवाली में मिलते हैं, उत्तरायण में मिलते हैं, तिल गुड़ चिक्की खाते हैं, हाँ या ना? साल में जितने भी त्योहार आते हैं उसमें मेजोरिटी त्योहार में मिलना है, जिसमें मिलना कम है उसमें भी खाना तो है ही, और मिलके खाना ही है। अभी जैसे मिलके एकादशी करते हैं, फिर मिलके फलाहार करते हैं, मिलके भूखे रहते हैं। गौरी व्रत 5-5 दिन बच्चियां भूखी तो रहती है, लेकिन रात को 12 बजे तक खेलने का कार्यक्रम मिलके होता रहता है। तो सभी उत्सव ऐसे है, मिलना। तो कुल मिला के इन टोटालिटी ह्यूमन कनेक्ट। मैंने पिछले कार्यक्रम में आपको कहा था एक लेटर लिखने को, याद है? उसके पहले के कार्यक्रम में कहा था माफी मांगने को, याद है? ये सब याद है? लाइफ स्किल में सभी स्किल एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएगी। अभी माफी नहीं मांगोगे ना तो भारत पाकिस्तान से भी बड़ी दीवार रहेगी जिंदगी भर। तो कम से कम ये ह्यूमन कनेक्ट कम हो गया कि नहीं हो गया? अब जिसके साथ कनेक्ट था और अब कनेक्ट कम हो गया है, उसका स्ट्रेस जिंदगी भर लेके फिरोगे। इसलिए जैनम जयति शासनम मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, माफी मांग लो, माफी मांग लो। मैं तो डेली मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण बोलते हैं, राइट? कि भाई अपने मन वचन कर्म से किसी का कोई हो गया तो मैं माफी मांगता हूं। अभी सामने व्यक्ति ना भी हो, लेकिन अपने सोने से पहले खुद के अंदर तो बोल सकते हैं ना कि मेरे मन वचन कर्म से मेरी गलती कहीं हो गई होगी। मैं तो एग्जिस्टेंस को माफी मांग लेता हूं। एग्जिस्टेंस, टोटल अस्तित्व माफ कर देना। बड़ी मस्ती से चैन की खटाक से नींद आती है। ऐसे गए, नेक्स्ट मोमेंट आउट। अगर स्ट्रेस है तो नींद नहीं आएगी। तो माफी मांग लेना, माफ कर देना। जिंदगी में 200 लोग हैं, उसमें से 20 के साथ गांठ बंधी है। नहीं माफी मांगोगे तो आपका कनेक्ट हो गया 180।
माफी मांग ली तो हो गए 200। ये सिंपल इक्वेशन है। अभी इनके साथ 200 के साथ होता है 200 से तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर सभी जगह आप ऐसा करते रहे तो कोई भी इनिशिएटिंग पॉइंट के बाद आपका दायरा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो कितना बढ़िया। अभी देखो, केवल वेबिनार के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गया। अभी एक बार मैंने केवल प्रस्ताव रखा था, सभी के हाथ ऊपर हुए थे कि भाई मैं लोगों के घरों में रहना चाहता हूँ, आपके घर 2-3 दिन रहूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, फिर कुछ लिखूंगा, राइट। उसके ऊपर मेरे और विचार चले, अभी चल ही रहे कि उसको कैसे सही में उपयोगी कार्यक्रम बनाया जाए। तो मेरे मन में विचार ये आया कि मैं किसी के घर जाऊंगा तो उसके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। तो मैंने ये तय किया कि मैं आपके घर आऊंगा राखी बहन तो बर्तन मांज दूंगा मैं, तो ताकि आप बढ़िया डिशेस मुझे खिलाना और बर्तन मैं मांज दूंगा। तो कैसा लगेगा आपको कि भाई ये तो पूरा थकान के बाद करने वाला काम है। शायद मान लीजिए आपके यहाँ कोई हेल्प भी आता हो, पर फिर भी ऐसे छोटे छोटे मोटे काम, तो जैसे करके मैं आपका थोड़ा बोझ हल्का कर दूं और मैं उपयोगी हो जाऊं। अब देखिए, मुझे लगता है ऐसा लोग करने नहीं देंगे, लेकिन मेरे मन के अंदर ये भाव आया तो मैं तो हल्का हो रहा हूं ना, कि मेरे मन के अंदर तो बोझ नहीं बनने की बात आ रही है ना। जब मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनने की सोच रहा हूं तो मैं मेरी जिंदगी के लिए तो बोझ नहीं बनूंगा। आर यू गेटिंग? मैं आई एम कनेक्टिंग यू टू ऑल दोज फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस। हम हमारी जिंदगी में चीजों को इतनी अननेसेसरी चीजें इकट्ठे बन के खुद के लिए ही बोझ बन जाते हैं। तो कुशाल, तेरे घर से शुरू करता हूं। कुछ कुछ लोगों के घर गया हूं तो उनका भाव तत्व हृदय को जो छुआ है, એટલે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એ છે કે આ હ્યુમન કનેક્ટ છે. હમણાં જાયશા આવીને જતી રહી, પણ જો મારાથી એ જેટલું પણ કમ્યુનિકેશન થયું એની અંદર સંસ્કારનું એક બુંદ પડ્યું છે કે there is a person on this earth who took note of me, જેણે મારા હોવાની નોંધ લીધી છે. આપણે બધા પ્રેમના ભૂખ્યા છીએ, પણ આપણા હોવાની નોંધ ના લેવાય તો પેલી પ્યાસ તો અધૂરી જ રહે. આપણા સ્ટ્રેસની શરૂઆતથી આ વાત કરી રહ્યો છું. બધાને પ્યાસ છે. ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપમાં મેં કહ્યું હતું સમગ્રતા અને સંપૂર્ણતા, યાદ આવે છે ને? પૂર્ણતાની પ્યાસ છે. બીજાની સાથે જોડાઈને આપણે આ પ્યાસમાં પૂર્ણ થવાની કોશિશ કરીએ છીએ. જ્યાં સુધી ડિટેચ રહીએ છીએ ત્યાં સુધી સ્ટ્રેસફુલ રહીએ છીએ. જેવા જોડાઈએ છીએ એટલે પૂર્ણતાની ફિલિંગ આવે છે. અને જોડાવાનો એક સેતુ શેરિંગ છે, એક સેતુ કમ્યુનિકેશન છે. સંવાદના માધ્યમથી પણ આપણે જોડાઈએ છીએ. સર, આપને સાંભળવાની એટલી મજા આવે કે જવાનું મન નથી થતું. હવે એ કહેજો, એવું કેમ થતું? That's human connection. એ મેં તમને કેટલી બધી વાર કવિતામાં કહ્યું છે, રાત દિવસનો રસ્તો વાલમ નહીતર ખૂટે કેમ, તમે કરજો પ્રેમની વાતો અમે કરીશું પ્રેમ. શિપાલભાઈ, રહસ્ય કાંઈ જ નથી. હૃદયના સાચા ભાવથી કશુંક હું તમને કહેતો હોઉં અને તમારા હૃદયમાં એ જ સાચો ભાવ હોય એટલે આપણે એક જ વેવલેન્થમાં છીએ, હાર્મનીમાં છીએ, સંવાદિતામાં છીએ. તો સંવાદિતા સુખ. હવે તમને સુખનું સરનામું મળી જાય, તમે થોડું છોડવા ઈચ્છો? તો ક્યારેય માણસ સુખથી ધરાતો નથી, દુઃખથી ભાગે. ક્યારેય તમને એવું થાય કે આ બહુ પ્રેમ મળી ગયો, હવે તો થોડો ધિક્કાર મળવો જોઈએ, કે આ તો બહુ શાંતિ રહી, હવે થોડી ગુરુવારે અશાંતિ હોય તો સારું. એવું ના થાય. સુખ, શાંતિ, સંતોષ, આનંદ, પ્રેમ, આ બધી વસ્તુ આપણને સતત જોઈએ. એમાં ટુકડો ના ચાલે. યસ રાખીબેન? The gentler it falls, the deeper it goes. The gentler it falls, the deeper it goes. વન્ડરફુલ. અંગ્રેજીમાં એમણે કહી દીધું. એનીવે, સરસ. તો બધાને મોજ પડી રહી છે. દેટ ઇઝ એ ગુડ સાઇન. હવે હોમવર્ક તો આવશે જ. તો જે લોકોએ પાછલા એપિસોડોની અંદર માફીનું હોમવર્ક નથી કર્યું એ પૂરું કરી નાખો.
જે લોકોને ઉંમર પતી ગયું છે એ લોકો કનેક્ટ માટે શું કરશે એ તમને કહું. આવતીકાલે સાંજે મળીએ તે પહેલા થોડા મિત્રોને, થોડા એવા સગાવાલાઓને યાદ કરો જેની સાથે તમને હમણાં ઘણા વખતથી વાત નથી કરી. જસ્ટ ફિગર ઇટ આઉટ. દાખલા તરીકે મામા, માસા, ફુવા, કોઈ દોસ્ત, કોઈ સાથે કોલેજમાં ભણતો સાથી, કોઈ તમારો જૂનો કર્મચારી, જેમ કે શિપાલભાઈની ચોકમાં કામ કરતો હોય અને હમણાં 4 વર્ષ પહેલા છોડી છે નોકરી, જરા શોધી કાઢો. એવા લોકોને, મિત્રને યાદ કરીને કોલ કરો અને ખબર અંતર પૂછો કેવું ચાલી રહ્યું છે એમની જિંદગીમાં. બટ વેન એવર યુ કોલ, હેવ 30 મિનિટ્સ, 30 મિનિટનો સમય લેજો, કારણ કે તમારા ધ્યાન બહાર એને ઘણું કહેવાનું થતું હોય. એને કહેવાનું મન થાય પછી તમે કહો હવે મારે તો પતી ગયું, હોમવર્ક જ હતું, એ તો સુરજબેન ખુશ કરવા માટે હતું, એટલે હવે આગળ વાત ના કરું, તો ના ચાલે. તો પછી બરાબર નહીં. એટલે હેવ સમ ટાઈમ એન્ડ ડુ ઇટ. હવે જે લોકોને આવું કરવાનો સ્કોપ નથી અથવા અનુકૂળતા નથી કોઈક સંજોગોમાં, તો ઘરની અંદર જે લોકો સાથે બેઠા છો એની સાથેનો કનેક્ટ. તો એમાં કહો કે તમને શું શું ગમે, ગમા શોધી કાઢો, રાઈટ. અને એના માટે ક્વેશ્ચન પહેલેથી પ્રોએક્ટિવલી ડિઝાઇન કરો કે આજે મને એવું જાણવામાં રસ છે કે તમે જન્મ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધી મોટા થયા ત્યાં સુધી જેટલું ધ્યાન ગયું કે શું 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 ગમે, એમાં ખાણી પીણી, ચિત્ર, શોખ, મિત્ર, મુલાકાત, પિક્ચર, હીરો હિરોઈન, જે બી છે બધું. કમોન, શું શું ગમે, બીજું શું ગમે, શું ગમે, શું ગમે, શું ગમે, આવું બધું શેરિંગ કરો. તમને એમ થાય કે અણગમવાનું કેમ નથી કહેતા? એના તો સ્ટ્રેસ છે. આપણે નવા સ્ટ્રેસ ઉભા કરવા નથી, કારણ કે શું નહીં ગમે એમાં તમારો મુદ્દો લાવી દેશે કે મને તો તમારું જ આ નથી ગમતું, એટલે એક વધારાનો સ્ટ્રેસ ઉભો થાય. એટલે આપણે એ નથી કરવું. શું ગમે, હા, એમાં એમ કે ભાઈ તારી તે લટને લહેરવું ગમે, રાઈટ. આવી કોઈ કવિતા આવી જાય તો પછી કઈ મજા પડી જાય. તો એ કવિતા, આઈ મીન એ એક હોમવર્ક કરશું ને કાલ મળશું. નમસ્કાર, જય હિન્દ, આવજો.